कोडिंग Let's start. Two x in bracket x minus 3 minus 1 in bracket x minus 3 is equal to x in bracket x minus 1 plus 5 in bracket x minus 1. X is multiplied with the 2x, 2x square, minus 3 into 2x, 6x, minus x plus 3 is equal to x square minus x plus 5x minus 5. Clear beta? 2x square minus 7x plus 3 is equal to x square plus 4x minus 5. कहाँ पे क्यूब बेटा? क्यूब में x square plus minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 5 is equal to 0. Clear beta? So x square minus 11x plus 8 is equal to 0. So this one is the form of the x square plus bx plus c is equal to 0. Yes, it is quadratic equation. वैसे आपको मालूम है मैं x square plus 3x plus 1. This one is the identity a minus b whole the square is equal to a square minus 2ab plus b square. So x square minus 4x plus 4. X square minus 2 to the 4x plus 4. डायरेक्टली पता चल रहा है ना बेटा? इसकी दिखाओ. चलो एक बार दिखा दो. x minus 2 whole the square is equal to x square minus 2 into x into 2 plus 2 square. So x square minus 4x plus 4. बेटा ये मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट किया. Clear? Then x square minus x square plus 3x plus 4x plus 1 minus 4 is equal to 0. X square minus x square is 0. 3x plus 4x, 7x minus 3 is equal to 0. Is it a quadratic equation? No. Why? It is not a quadratic equation. X plus 2 whole the cube is equal to 2x in bracket x square minus 1. A plus b whole the cube identity मेरी. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. X cube plus 3 in bracket x square into 2 plus 3 into x 2 square plus 2 cube is equal to 2 into x 2x cube minus 2x. Clear beta? X cube plus 3 to the 6 x square plus 3x into 4 plus 8 is equal to 2x cube minus 2x. X cube plus 6x square 3 4s are 12x
plus 8 is equal to 2x cube minus 2x. x क्यूब माइनस सॉरी हम साइड उस ओर जाते बेटा राइट साइड पे 0 is equal to 2x cube minus x cube minus 6x square minus 12x minus 2x minus 8. 2x square minus 2x cube minus x cube minus 6x square like terms 12 and 2 minus 14x minus 8 is equal to 0. This given equation is quadratic. Yes. It is cubic equation. Okay. हाँ एक्सप्लेनेशन है तो ना वो तो एमसीक्यू कॉन्सेप्ट था तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे थे इसीलिए बेटा क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में इन्वॉल्व कर सकते बड़े में छोटा आ सकता है छोटे में बड़ा तो क्यूबिक में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो सकता है मगर लिनियर में क्वाड्रेटिक नहीं ओके वरना ऐसा एक्सप्लेनेशन आया तो नो ही आएगा इट इज अ क्यूबिक क्लियर राइट x cube minus 4x square minus x plus 1 using this identity again x cube minus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square minus 2 cube. Clear beta? X cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 6x square plus 3x into 4 minus 8. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 8. Like terms together, x cube minus x cube minus 4x square plus 6x square minus x plus minus 12x plus 1 plus 8 is equal to 0. Clear beta? X cube minus x cube 0 minus 4x plus 6x square 2x square minus 12x minus x minus 13x plus 9 is equal to 0. So yes, it is a quadratic equation. Clear beta? Write down. Question 2. Creation of the equation. This one is a 3 or 4 mark question. For state board, this one is including section C or section D. For CBSE, this one is including section C. So minimum 3 mark question for the state board and CBSE board. Area of rectangular floor is 528 meters square. Length of the floor in meter is one more than twice its breadth. बेटा जो छोटा यूनिट होता है ना हम उसे ही assume करते हैं. So let's assume breadth is equal to x. Breadth is equal to x. So length is equal to length के लिए बोला है length of the floor
is 1 more than twice of the breadth, twice 2x, 1 more plus 1. Area of rectangle is equal to 528 meters square. Find the length and we need to find the length and breadth of the plot. Okay. So what is the formula? Area of rectangle, length into breadth is equal to 528 meters square. Value of the length 2x plus 1. Value of the breadth x is equal to 528. So 2x square plus x is equal to 528. 2x square plus x minus 528 is equal to 0. So using the middle term splitting method, 528 into 2 1056. 1056 split into 2 parts. 1056 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे बेटा कि माइनस करने पे 1 आए. चलो यहाँ माइनस है तो हमें सबट्रैक्ट करना है. मिडिल टर्म प्लस एक्स है मतलब 1 कोएफिशिएंट है उसका तो 1 आना चाहिए. 1056 के फैक्टर्स कुछ नहीं पता चले तो डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. हाँ बेटा सर ने तो हमें नहीं कराया था. मैम आगे बस इसके आगे कुछ करने का नहीं. हमें पढ़नी होगी बस पॉजिटिव. हमें पढ़ाई होगी इसके आगे ये पढ़ना पड़ेगा जिसकी बात निकले 3-4. एक काम करिए बेटा आप एक्सरसाइज 4.2 निकालिए तो टेक्स्ट बुक में. In textbook exercise 4.2 question number 2. Read the question number 2. 8x. Okay. फिर question 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन देखो ऐसे ही वन प्रॉब्लम है बेटा. हम अभी स्कूलिंग में नहीं है बेटा, बोर्ड एग्जाम की नजदीक आ गए. जरूरी नहीं है ये इक्वेशन में फाइंड, ऐसा नहीं बोला है बेटा क्वेश्चन में. हाँ फर्स्ट बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meters square. The length of the plot in meter is 1 more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एग्जाम में यही क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन डी में आएगा बेटा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि सिर्फ इक्वेशन रख के छोड़ दिए. ऐसा बोला है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो फाइंड करना पड़ेगा बेटा. ओके तो कर ही लेना. टेक्सचुअल में नहीं बोला है मगर कर ही ले क्योंकि आगे जाके ये आने वाला है, प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ. अब क्वेश्चन क्या हुआ, तो क्वेश्चन ऐसा हुआ बेटा कि इतना बड़ा 1056 का फैक्टर निकाल के लेके आना क्या है. स्मॉल डिजिट होती तो मेरे लिए इजी होता कि मैं इजीली फैक्टर निकाल लेती. 3 डिजिट 4 डिजिट तक आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है. तो इसीलिए जो बच्चे सेकेंड चैप्टर पढ़े थे तो उसमें मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको डी वाली डिटरमिन डी वाली फॉर्मूला करवाई. वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे. क्या है वो फॉर्मूला? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला थी बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हम डिस्क्रिमिनेंट डी, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि आपको आइडेंटिटी या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली वैल्यू ऑफ x फाइंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट डी की फॉर्मूला. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन वैल्यू ऑफ जीरोस
minus b plus under root d upon 2a. This one is called as the alpha, मतलब value of 10x, and beta minus b minus under root d upon 2a. हम ये फॉर्मूला का यूज कर, ये दोनों फॉर्मूला से बेटा ये लर्न करके रखना है आपको। तो मुझे क्या चाहिए डी के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ b 1 and value of c minus 528. For d, b square minus 4ac. 1 square minus 4 into 2 minus 528. 1 square is 1. 4 2s are 8 minus 528. माइनस 4 नहीं प्लस हो जाएगा। 1 plus 4 2 2 4 मेरा 4 2 4 अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने अल्फा की, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू ऑफ बी 1 प्लस अंडर रूट 4225 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 4225 का अंडर रूट क्या होगा 65। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने यूनिट 5 वाला पढ़ा था। 2 स्प्लिट कर दिया हमने, लास्ट 2 डिजिट 25, आगे की डिजिट 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। 42 कौन सी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 42 होता है 6 7 जा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट लिख दो। 65 स्क्वायर इज 4225। पता नहीं चला 225 का तो आपको बताया ना, दिस वन इज 50। चलो इसमें ट्राई करते हैं। 25 का अंडर रूट 5, which two consecutive digit 1 2 are 2, 2 3s are 6। ये सब में चलता है। At the unit place 5 is present. So last 25 है, तभी ये करोगे, not for the 75, only for the 25. Okay? तो मुझे लगा कि आपने 65 बोल दिया ना, तो कल 65 तक सारे स्क्वायर याद करके 65 by 2 to the 4. So 64 minus 1 plus 65, so it called as a 64 by 4. 60 Suggest for the beta minus b minus under root d upon 2a. So minus 1 minus under root 4225 upon 2 into 2 minus 1 minus 65 by 4 minus 66 by 4 divided by 2 30 minus 33 by, so negative not possible. ये मैंने x फाइंड किया, so this one is called as the breadth। अभी लेंथ फाइंड कर, पहले इतना लिख
16 into 2, 32 plus 1, 33 meter. Second question. The product of two consecutive positive integers is 306. Let the one number other number consecutive means adding the 1, so x plus 1. Product of two number is 306. So x into x plus 1 is equal to 306. X square plus x is equal to 306. X square plus x minus 306 is equal to 0. यहाँ पे मैं कंपल्सरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करवाऊंगी क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है. सो 306 के ऐसे फैक्टर लगाएंगे बेटा कि माइनस करने पे 1 आए. कुछ दिमाग में नहीं है तो डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके ये 70 है बेटा एंड दिस वन 18. So 18 minus 17 1 x square plus 18x minus 17x minus 306 is equal to 0. X common x plus 18 minus 17 common x plus 18 is equal to 0. So one bracket common x plus 18, another bracket x minus 17 is equal to 0. X plus 18 is equal to 0. So value of x is equal to minus 18. Not possible. Or x minus 17 is equal to 0. So x is equal to 7. So value of one number is 17 and other number 17 plus 1 8. One number is equal to x is equal to 17. Other number x plus 1 17 plus 1 is 18. Write down. minus 18 क्यों नहीं? बेटा x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. Equation create करें. X in bracket x plus 29 plus 3 in bracket x plus 29 is equal to 360. ओके अब क्या करेंगे आगे. plus 87. x square plus 32 plus 87 minus 360 is equal to 0. minus 273. अब करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. नहीं हो रहा. ऐसे थोड़ी होगा. मतलब 273 के फैक्टर्स निकाले ना तो क्या बोलते हैं उसको? मतलब 3 फैक्टर्स निकले उसके बाद आगे तीनों का कुछ भी परसेंट निकाल ही नहीं. पॉसिबल ही नहीं हो रहा.
टू 273 के क्या फैक्टर्स निकले आपके? 3, 7 और 13। 3, 7 एंड 13। आपको माइनस करके 32 लेके आना है। 13 3 सा 39। तो पहला मैंने ट्राई किया 39 माइनस 7, तो गया बेटा। फैक्टर भी आपने ही निकाले थे, मैंने ही नहीं निकाले। ओके, फैक्टर भी आपने ही निकाले, फैक्टर निकालना भी आपको आता ही है, सिर्फ आपने रीअरेंज करने में गलती कर दी है ना। 13 3 सा 39, 39 माइनस 7 32 हुआ कि नहीं? आता है, सिर्फ जो थिंकिंग की जो लाइन है ना वो लाइन मेंटेन करो। ओके, चलो उसके सिवा सारे मल्टीप्लाई करके देख ले। x square plus 39x minus 7x minus 273 is equal to 0. कॉमन निकाले बेटा। x plus 39 minus 7 x plus 39 is equal to 0. x plus 39 second bracket x minus 7 is equal to 0. x plus 39 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. x is equal to minus 39 or maybe x is equal to 7. h तो नेगेटिव नहीं होगी ना, so not possible. और क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, मदर का बोला ही नहीं था। क्लियर? ट्रेन वाले सबके दुश्मन होते हैं ना। क्या है मेरा क्वेश्चन? A train travels at the distance of the 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover same distance. We need to find the speed of train. तो बेटा हम एज्यूम ही स्पीड करने वाले हैं। Let the speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या बोला है? 480। सो टाइम टेकन क्या है? टाइम टेकन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें स्पीड की फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कर सकते हैं ऐसा? बेटा क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि कुछ स्पीड हमारी कम हो रही है, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो दो टाइम आएंगे, T1 एंड T2। सो आई एज्यूम दैट T1 is equal to distance upon ये स्पीड जो है it called as the S1. So my distance 480 and speed is equal to x. तो T1 is equal to 480 by x. अब क्वेश्चन में बोला था if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर less, तो अब मेरी स्पीड क्या हुई? कितने किलोमीटर पर आवर कम हुई?
सपोज 80 थी तो -8 मतलब 72 जो भी था उसमें. So T2 is equal to 480 upon x minus 8. ओके, इतना तो बेटा लिख दिया. अब मैं कंफ्यूज हो गई कि स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा. Okay. तो ये जो बोला है ना बेटा, टेकन 3 hours more to cover the same distance, तो मैं क्या करूंगी? T1 minus T2 लूं या T2 minus T1 लूं? यस, T2 minus T1. सभी बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं. ओके, जहां स्पीड कम हुई ना बेटा वहां टाइम ज्यादा हुआ. और सब्ट्रैक्शन का रूल है, नॉर्मली हम बड़ी डिजिट में से ही छोटी माइनस करते हैं. तो ये टाइम बड़ा हुआ तो ये पहले लूंगी ना मैं. T2 minus T1 is equal to how many hours? 3 hours. बारह पे दे. 480 upon x minus 8 minus 480 upon x is equal to 3. Clear बेटा? Write down that. बेटा LHS की ओर देखो काव्य. न्यूमरेटर पे 480 दोनों में कॉमन है बेटा, तो मैं कॉमन ले लूं तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा काव्य. 1 upon x minus 8 minus 1 by x is equal to 3. ये 3 मल्टीप्लाई में सामने ट्रांसपोज हुआ तो 480 डिवाइड बाय 3. देन क्रॉस मल्टीप्लाई x minus 8 upon x in bracket x minus 8 is equal to 0. वैसे का भी ये तो मैं कर लूं, मगर फिर दिक्कत क्या होगी पता है? इक्वेशन 0 हो जाए. तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे? वजन नहीं आपका यूज है बेचारा. थ्री ऐसा करना है काव्य? ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करना है. ऐसा भी नहीं करना है. ज्यादा कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं हमें. 480 जहां है ना वहीं रखना है, वरना कहाँ पे इक्वेशन 0 हो जाएगा, स्क्वायर ही कहाँ पे गुम हो जाएगा. फिर होगा कि गलती क्या हुई, इक्वेशन क्यों क्रिएट नहीं हुआ. क्लियर? स्टेप बाय स्टेप ही जाना है. 480 in bracket x minus x plus 8 upon x into x square minus 8x is equal to 480 x minus x into 8 is equal to 3 in bracket x minus 8x. क्लियर बेटा? अब जो आगे किया था ना कभी वही कर रही हूँ, मगर यहाँ इक्वेशन 0 से मल्टीप्लाई हो जाता ना तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुम हो जाता. अब मैं 3 डिवाइड में लूंगी. 480 into 8 by 3 is equal to x square minus 8x. 480 divided by 3 160. x square minus 8x 160 140. 160 into 8 x square minus 8x is equal to 1440. x square minus 8x minus 1440 is equal to 0. अब 1440 के ऐसे फैक्टर निकालो बेटा, माइनस करने पे माइनस ही. चल फैक्टर के लिए तुम x square minus 40x plus 32x minus 1280 is equal to 0. x common, x minus 40 plus 32 x minus 40 is equal to 0.
x minus 40 another bracket x plus 32 is equal to 0. x minus 40 is equal to 0 or x plus 32 is equal to 0. x is equal to 40 or x is equal to minus 32, which is not possible. Clear? Next question. Team B, D. Team C, Team D, टीम ई का डी कर दे Team E का D, Team A, Team C, Team D, A ना B, C, D, B. मैं एकदम एक मिनट की दूं जल्दी चेंज करना तो बोल दे वरना मैं रिवील कर रही हूँ आंसर. बस 1 मिनट यही रखो. ना ना वो भरो नहीं है 1 मिनट करेंगे नहीं बनती है मिनट. तो एक टाइम लिमिट हुआ है रिवील. बस हैंग ऑफ हां कंप्यूटर कॉम कंट्रोल मैं फोबी भी C is right one. बोला ही नहीं नहीं समझ ही नहीं आया. टीम A राइट. बाकी सभी बच्चे गलत. देख लो ये कैलकुलेशन. अरे ठीक है ओके ओके अब समझ गए एक बार मैं वापस मैं कितना बड़ा कैलकुलेशन था हमारा तो यहाँ ही खत्म हो जाता ना बेटा. -4 भी आए तो 6 कैसे आया नहीं समझ रहा. यहाँ उन्होंने कैलकुलेशन कैसे दिखाया बेटा. फर्स्ट टेक द ऑप्शन x की जगह पुट करके देखा है कि कौन सा आंसर आ रहा है. इसके में जाना भी था योर चॉइस ना. आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करो. आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x2 और LHS RHS सेम आता है कि नहीं. जैसे 8 में करते थे ना हम चेकिंग. ऑप्शन है एमसीक्यू. आपकी चॉइस. आपको क्या करना है. क्लियर. वरना दिक्कत हो तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखो. एक बार सॉल्व करना. कुछ डाउट हो तो आपके सॉल्यूशन में मैं देख लूंगी क्या है. सिखाऊंगी फिर से. 480 upon x minus 8 is equal to 160 upon x. करो नेक्स्ट क्वेश्चन. से सभी जो आते हैं ये चैप्टर ही ऐसा है बेटा. चलो टीम ए. मैं सीनो लेगी हाँ बोले. बी. हमारा बी कर बी होगा भाई सी होगा बी 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 दोनों बोल लो क्या. एम बी. बी बी. ओके. चलो टीम ए बी. टीम ए बी एंड डी. बी. टीम टी बी. टीम ए एंड टीम डी. बेटा चलिए हमारा टीम बी. सही है डेटा साचा सही है सही है चलो टीम ए एंड टीम बी. मोटे लोग लोए तो क्या बी बी मुझे फोर उसका रिवील द आंसर. बी राइट.
इतना सारा भी नहीं करना था। मैं तो 480 डिवाइड 3 लेके जाओ इस वक्त। 480 डिवाइड 3 इट मींस 160। x minus 8 राइट साइड लेके जाओ। 160 is equal to x minus 8 minus 8 ट्रांसपोज हुआ प्लस, so x is equal to 168। within a 2 line सॉल्यूशन हो जाता। थर्ड वन, ये भी किया हुआ है बेटा, बी। टीम सी से ए। टीम डी ए, टीम ए, टीम ए बी, राइट। सेकेंड लास्ट, ये तो यार इतना इजी तो कुछ दे नहीं सकती मैं। ए होगा मैम। ये बोलना मैम डी करो डी। डी मैम विद्या डी होगा पॉइंट के अंदर आएगा। टीम ए, बात तो सही है। मैम एक मिनट हमारा भी गिरा पर कौन बात एक कर रहा है? मिनट रिवील रुको करो ना। मैम मुझे टाइप ऑफ रिवील कर दो मैम तो यार इतना गुस्सा से तमाम लोगों पर सब लीक करो। टीम बी, बी कंफर्म ना डी करें। टीम ए एंड टीम सी ए, टीम बी डी ई बी। मैम आप डिवाइड तो करो उसको। मगर यहाँ नोट नहीं दिया बेटा। मैंने इसको बोला मैं 160 This one is not terminating। चलिए ना पढ़ा कि नहीं पढ़ा? terminating non terminating। मैंने इसको बोला छोटी छोटी गलतियाँ करते हो यार। लास्ट वन में वही तो बोली ऐसा कभी ना होता है। क्या है इसमें छोटी छोटी गलतियाँ इतने इससे तो इजी हो ही नहीं सकते थे क्वेश्चन। नहीं सॉरी देने दो। टीम सी बी, ए भी बी बोल रही, बी भी बी, ए बी, टीम बी। ना अब तो सॉल्व करने के बाद ही जवाब दो। इसमें क्या सॉल्व करने का यार? अरे पर रुको ना, इसमें तो बी नहीं हाँ है। हाँ सबका राइट। तो कहते एक बार वापस लो, ये वाली गिननी नहीं चाहिए। नहीं ये तो मैं ग्रुप में डालती हूँ। मार्क्स दिखाना है बी के 2 या 3 आए हो। टीम ए 5 out of 5, टीम बी सेकेंड, टीम सी फर्स्ट, टीम ए सेकेंड, टीम सी देन सभी थर्ड विनर। ओके